السلام علیکم حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مصطفی من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصحبہ علیہ وسلم كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے مسجد پائے نماز پائے وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں. اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے اور نہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے. اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک شریعت ایک چار چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے. چار چیز میں ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ کا مسجد کہتا ہے سود سے بچیں, انٹرسٹ سے بچیں, لون سے بچیں, پوری دنیا سے عمل کر کے جائیں. مسجد نے وظیفہ دیا, وظیفے کے بارے میں سننے بولنے میں غلطی ہوگا تو ہم معاف کریں گے. سورہ فاتحہ پڑھیں گے ایک بار 20 پارے کا ثواب, 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے ایک ختم کلام پاک کا ثواب ملے گا. فلق اور ناس پڑھنے سے بھوت پریت آسیب سے آدمی بچتا ہے. حقانی درود شریف پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. جس وقت انسان ایک بار حقانی درود شریف پڑھ کے پورا کرتا ہے اس کو 300 درود کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا وعدہ ہے. اب دیکھ لے مرشد کا حکم ہے. سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے تختی پر لکھ دیا, تختی بھر جاتی ہے, اس کے مٹھی پر آمین لکھا ہوا ہے. تختی نے سجدہ کیا, اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے تختی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے تختی تم سر اٹھا, میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دیا. کیا مرشد غلط پڑھے گا؟ پھر کیا پرستی سے کیا مطلب؟ ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں باخدا کر دے, یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے. مرشد دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر, اور لو اور تم بھی دعا کر کے آنا. نبی پیغمبر رس کریں گے. کاش کی یہ دعا ہمیں ملی ہوتی جو کہ حقانی انجمن کو ملا, صوفی جان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو. کتنا بڑا مرتبہ دیا. آج دیکھ لیں ایک مرید تھے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ, جو ہے مرشد تلاش کرتے کرتے پوری دنیا کا بھرمڑ کیا, یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچ گئے, یا کہ کہتے ہیں کہ میں ان کے خاندان کا گیٹ مبارک کھول دو, کہا ایسا ہی کھل جائی. اس کے بعد 15 دن دینے پر بیٹھے رہے میرے بھائی. 15واں دن اپنے سے گیٹ مبارک کھلا, اندر سے آواز آئی بیٹے ادریس ادھر آؤ. کیا چلے ہو؟ کہا کہ مرشد تلاش کرتے کرتے یہاں سے یہاں چلا آیا. مرشد نہ ملت رہے. دیکھ لے حکم ہوا. آج ہم کس کی بات کا انکار کرتے ہیں میرے بھائی؟ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ اے مولانا ادریس تم باغماری چلے جاؤ. کس کی بات کا انکار؟ یہ حجر مبارک کے گیٹ مبارک پر کھڑے ہو کر کے مختصر میں آ جاتے ہیں اور گیٹ مبارک پر کھڑے ہو کے یہی سوچ رہے ہیں کہ کامل ہوگا تو بلائے گا, اور درود شریف پڑھنے لگے. مرشد صوفی جان گاچھی رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں. خادم جو ہے گیٹ مبارک کھول کر کے بند کر دیتے ہیں. کہاں حضور ایسا آدمی نہیں دیکھا. کہا کہ بلاؤ, جلدی بلاؤ. جاتے ہیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ میرے بھائی, ابھی بھی وہی بات ہے. کہتے ہیں مرشد کہتے ہیں کیا چلے ہو مولانا, تم کو کس نے بھیجا؟ اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کامل ہوگا تو بلائے گا, اور درود شریف پڑھ رہے تھے. اتنا کہنام تھا کہ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سجدے میں چلے جاتے ہیں.
कहा कि उठ के बैठ मौलाना, अल्लाह का औलिया किसी से नहीं डरता है, चाहे क्यों हो के। कहा उठ के बैठ। कहते हैं क्या चले हो? कहा कि हजूर मरीद होंगे। कहा बाबा आप तो आलिम हो, हम तो जाहिल हैं। ए मुर्शिद, जो कि उस वक्त 18 भाषा में वजीफा चल रहा था मेरे भाई, 18 भाषा। उसके बाद जो है बहुत देर हो जाती है। कहा कि ये मौलाना एक बात मान ले, आज हम लोग लेके इल्म इतराते हैं मेरे भाई, मुर्शिद की पैरवी करने होगी, मुर्शिद का इत्तबा का मानने होगा। जिसने अपने मुर्शिद को मान लिया और उसके अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लिया। नहीं, आज हम लोग नहीं मानते, करके दिखाया मुर्शिद। अब उसके बाद कहते हैं मौलाना, कहा कि जितना इल्म है ना सब ताक पर रख दे, सब ताक पर रख दे, तब तो समझौता, वरना खानका से गेट आउट बाहर। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगते हैं, अल्लाह ये जिंदगी की कमाई कहाँ रखूं। उसके बाद बहुत देर हो जाता है। सूफिया जनगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मौलाना टाइम 3 मिनट, वरना खानका से गेट आउट। अब उसके बाद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कहा हजूर मैंने सारे इल्म को ताक पर रख दिया। इतना कहना था। मौलाना सूफिया जनगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, अरे मौलाना 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया। कितना बड़ा मर्तबा दिया, अपने मरीद को एक मुर्शिद देता है। आज हम लोग नहीं मानते हैं, खाली फिरका के पीछे दौड़त अड़िया, कुछ नहीं है। मेरा मुर्शिद हक है, ये अल्लाह का औलिया हक है, मेरा मुर्शिद अर्श है। मायदीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद एक ख्वाब देखता है, बोलने में गलती होगा तो माफ करेंगे। ख्वाब देख रहा है कि मैं अर्श को सिर पर लिए हुआ हूं। उसके बाद जो है जाता, क्या नाम है, कहा सुबह हो गई, परेशान है, इस ख्वाब की ताबीर किससे पूछा जाए। कहा कि चलो मुर्शिद के यहाँ ही चलते हैं। जब गया तो मुर्शिद का जनाजा मुर्शिद के घर से निकल रहा था। परेशान है मुरीद, इतनी भीड़ है कि कंधा नहीं दे सक रहा है। जाके चपाई के नीचे सिर लगा दिया। मेरे भाई उस जनाजे से आवाज आई, फलाने तेरे ख्वाब की ताबीर मिली। ये अल्लाह के औलिया क्या हैं, अर्श हैं, माने और कुछ नहीं। फिरका तो इतना दौड़ी कि सब घबरा गए। आज जहाँ हक्कानी अंजुमन रही ना, वहाँ केहू ना जाए, कोई ना जाइए मेरे भाई। देख लें सारे औलिया की हाजिरी मुर्शिद करके दिखाया अपने मुरीद को। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजूर हम जाएंगे अजमेर। अजमेर जाओगे, तुम्हारे खानदान के लोग हैं। कहा कि हाँ जो अजमेर जाएंगे। कहा कि ठीक है, मेरा सिजरा लिख दो, मेरा सिजरा लिख दो। सारे औलियाओं की हाजिरी शुरू हो गई, सारे के सिजरे लिखे जा रहे थे। उसके बाद खाजा साहब का नंबर आ गया। मौलाना क्या नाम है, सूफिया जनगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, अरे मौलाना ऊपर मत देखियो, ऊपर मत देखना। उन्हीं से मकसद था, तिरछी निगाह देखा और सारा सिजरा लिख दिया उनका। यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ जाता है मेरे भाई। मुर्शिद मक्का से बागमारी को जोड़ दिया, मक्का के इमाम का नंबर आ गया। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को सिजरा लिखने में देर हो जाता है। सूफिया जनगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, ए मौलाना देर हो गया। कहा कि हजूर इनको आने में देर हो गया, इसलिए मुझे लिखने में देर हो गया। उसके बाद कहा कि सिर उठा के देखो। सिर उठा के देखते हैं तो क्या कहा कि ये कौन है। कहा कि ये मक्का के इमाम है, ये मक्का के इमाम है मेरे भाई। मुर्शिद दिखा रहा है अपने मुरीद को, यही दिखा रहा है बागमारी में, एक प्रैक्टिकल है मेरे भाई। उसके बाद जो है कहा कि असर या मगरिब का वक्त हो रहा था। कहा कि ये नमाज कहाँ पढ़ेंगे। कहा कि एक पैर यहाँ और दूसरा पैर खाना काबा की सरजमीन पर होगा, यही इनकी सवारी है। आज मुर्शिद हम लोग को दे दिया, पढ़ो।
इतना अच्छा चीज नहीं मिलेगा। मुर्शिद प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखाया अपने मुरीद को। जो है सूफी जरगाछी रहमतुल्लाह अलैह, एक मौलाना देवबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। यही खानकाह है मेरे भाई, हर फिरका साथ है। वो फिरका के अगर साथ रहता है तो जान लो कि उसके बाद कहते हैं मौलाना सूफी जरगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए मौलाना तू तो आलिम है, थोड़ा जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या नाम है वजू करते थे करके दिखा दे। परेशान है, आलिम है, परेशान है। अब उसके बाद कहते हैं चलो हाथ पर बैठ जाओ, नहीं बैठते हैं। मुर्शिद का आज तो हुक्म मान ले, हुक्म मान ले, आज बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि बनाओ, नहीं बनाते हैं। मुर्शिद बनाना शुरू किया, जब हाथ धुलते हैं ते करते मौलाना साहब 3 बार बेहोश हुए। उसके बाद मुर्शिद सवाल करता है अपने मरीज से कि अय मौलाना तूने क्या देखा? कहा कि आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नहीं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े जो चीज मिल गया वो कहीं नहीं है। ऐसा मजलिस नहीं है, ना ऐसा वजीफा है, ना ऐसा मुर्शिद है, कहीं नहीं है। मुर्शिद के यहाँ एक मौलाना साहब आते हैं जो हम लोगों के पोशीदा हुए हैं, साबल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके यहाँ एक मरीद आया, मौलाना साहब थे, कहा कि हजूर हम जाएंगे हज के लिए। कहा कि हाँ हज के लिए जाओगे, एक मिट्टी का ढेला ले लेना तयम्मुम के लिए। हज पाकिट में मिलता है करीब करीब 90% हक्कानी अंजमन वालों को, और तो कह देगा कि आए भाई आज तयम्मुम बर्खास्त ना हुई, मुर्शिद का हुक्म मान लिया वही कामयाब है, वरना कोई मकसद हल होने वाला नहीं है मेरे भाई। देख ले मुर्शिद करके दिखा रहा, कहा कि एक मिट्टी का ढेला ले लेना। अब मौलाना साहब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहा कि ले लेना, बच जाएगा तो तेरा, और नहीं तो एयरपोर्ट पर ले लेगा तो उसका। अब वो के छुए, फरिश्तों ना छुए, कौन छुएगा? मुर्शिद का हुक्म है। उसके बाद जो है जाते हैं वो मौलाना साहब मुख्तसर में एयरपोर्ट पहुंच गए, यहाँ तक कि जहाज में बैठ गए और जहाज जो है उड़ गया, फ्लाइट उड़ गई। एक या कितना घंटा चला कि जहाज का पानी खत्म हो गया, जहाज का पानी खत्म हो गया मेरे भाई। मौलाना साहब परेशान है, अल्लाह लगता है कि नमाज कज़ा हो जाएगी। अब वो जो है ढेला निकाल लेते हैं, देख के रोने लगते हैं, हिच्की बन गई मेरे भाई। अब उसके बाद जो है परेशान है, यहाँ तक कि लगा कि टाइम चला जाएगा। जब तयम्मुम किया, बगल वाला हाजी क्या कहा, ए हाजी हमको भी दे दे। बगल वाला हाजी क्या कहा, ए हाजी हमको भी दे दे। जितने जहाज में बैठे हुए थे मुर्शिद ने सारे के नमाज को तयम्मुम के जरिए बचा लिया, वरना उसका ठिकाना क्या होता अल्लाह ही जानता है। आज हम लोग के मुर्शिद दे दिए, पढ़े, और कुछ नहीं है मेरे भाई। दुनिया देखने किधर जा रहा है, मेरा ईमान कमजोर है, वरना कुछ नहीं, क्यों पहलवान नहीं थे। उसके बाद मौलाना साहब जाते हैं, फिर आए हजरत से मुलाकात के लिए आते हैं, मुर्शिद को देखते हैं, तभी रोना शुरू कर दिया, परेशान है। कहा मुर्शिद कहते हैं कि क्या बात है मौलाना, तेरा हज नहीं हुआ, ये अरकान बाकी रह गया। कहा कि हजूर मेरा मुर्शिद जहाज के पानी को भी देखता है। मुर्शिद ने क्या कहा है मौलाना, आज समझे हो, मुर्शिद दिल की बात को जानता है, ये हक है, इसलिए हम उसको माने। अल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे वजीफा दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें अल्लाह ताला मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे, मुर्शिद से मोहब्बत अता फरमा दे। यही है, इसलिए आप उसकी इत्तबा करें, माने अपने मुर्शिद को इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज दिया। कहे 50 टाइम, 5 पर 0। आज तो 5 टाइम में घोटाला हो जाता ना, कोई की टाइम घोटाला हो लगा तैयार और करके हम छोड़ के चल जाती है। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं,
कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत खुश हैं। कहा कि अल्लाह ताला ने मूसा 50 वक्त की नमाज दिया। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो इतनी तगड़ी उम्मत थी जो कि 2 वक्त की नमाज नहीं अदा कर सकी, आपकी उम्मत तो कमजोर उम्मत है, आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? ऐसे ही कह के 3 बार भेजा। तीसरी बार जब आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? एक बार और कहा कि ऐ मूसा अब हमें जाने में शर्म आती है। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने क्या कहा? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़ेगी, मैं 50 वक्त लिख दूंगा। है कितना बड़ा मत है। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज वजीफा कुरान यही जाएगा दुनिया से मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत। इसलिए हम लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं। देख लें एक माँ जो है अपने औलाद के लिए अपना औलाद को नमाज की तालीम दे रही, हम लोग कहा है नहीं करता है, क्या कहवत काज नहीं कर पाते है, नमाज की तालीम दे रही है, कह रही बेटा नमाज पढ़ ले। कहा कि ये माँ क्या नमाज करती है, नमाज पढ़ने से पैसा मिलेगा क्या? कहा कि हाँ। उनकी माँ ने क्या कहा? हाँ मिलेगा तुम्हें। कहा कि पैसा मिलेगा तब तो पढ़ेंगे। आज नस्ल क्या है? अरे बाबा मोबाइल चाहिए, कितना लागी भैया? कहा कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख उसी में लगा हुआ है। बगल से माँ चला जाए, बाप चला जाए, भाई चला जाए, कोई गुजर जाए उसको पता नहीं है बड़ा छोटा क्या है। देख ले माँ कह रही है बेटा नमाज पढ़ तुम्हें पैसा मिलेगा। अब जो है जब वजू बनाना शुरू करते तो जो है मुसल्ला बिछाती, उसके नीचे पैसा रख देती। ऐसे ही बहुत दिन सिलसिला चला। एक रोज मगरिब का वक्त हो गया, उनको आने में देर हो जाता है। अब जो है उनकी माँ जो है खाना बना क्या नमाज पढ़ के खाना बनाना शुरू कर देती है। अब उसके बाद वो आते हैं, जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आते हैं, वजू बनाया और मुसल्ला बिछा दिया और खड़े हो गए। उनकी माँ ने क्या कहा? अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, अल्लाह हिदायत देना तेरा काम है। अब जो है जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो क्या देखते हैं? मुसल्ला उठाया तो क्या देखा कि मुसल्ला पूरा पैसे से भरा हुआ था। आज हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, अपने औलाद को भी नहीं कहते, डर से कहीं कुछ कह न दे, ना कह कि बेटा नमाज पढ़। ये बात दुनिया में, दुनिया से ये जाई पहला सवाल हुई, पहला सवाल, क्योंकि अपने नबी को नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने पहला सवाल किया, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पूरा पढ़ डाला। ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे? नमाज। बुढ़ापा आ जाता तब बोलने के समझौता हो, बुढ़ा हो गया इंसान तो भी नहीं, बुढ़ा हो गया इंसान दाढ़ी नहीं, बुढ़ा हो गया इंसान नमाज नहीं, बुढ़ा हो गया इंसान कुरान नहीं है, दाढ़ी पर भी समझौता नहीं है मेरे भाई। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनको एक ही दाढ़ी का बाल था, एक तो गिनती में एक थे। अब जो है नहा लेते तो घंटों कंघी करते। एक दिन कंघी कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, देख के मुस्कुराते हैं। अब वो सहाबी पहुंच जाते हैं वहां तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के हंसते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन हुआ तो वो सोचते थे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसको काट दिया, यहाँ छीर के ले जाके मोरी में डाल देती जा, देख लें इसका मर्तबा। उसके बाद जो है कहा कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर को घुमा लिया, परेशान है, सहाबी हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कौन सी गलती हुई जो बताया जाए? कहा कि तूने एक दाढ़ी के बाल को काट दिया। कहा कि आप हंसते मुस्कुराते थे, हम सोचा कि अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने काट दिया। कहा कि मैं इसलिए हंसता मुस्कुराता था कि तुम्हारे एक दाढ़ी के बाल में जन्नत की 70 हूरें झूला झूल रही हैं। आज हम लोग काट के ले जाके मोरी में डाल दिया।